ایک بار پھر آپ کو براہ راست لیے چلیں گے JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان نیوز کانفرنس کر ہیں۔ آسمان زمین پہ گرائے گا، آسمان تو نہیں گرا، ایک ستارہ بھی نہیں گرا۔ تو اس طریقے سے لوگوں پہ ایمرجنسی مسلط کر کے کہ انوا جس طرح بھی وہ چاہیں ہم بل کی منظوری دے دیں، میرے خیال میں یہ بل اپنی تفصیلات کے ساتھ، اصول کے ساتھ نہیں، تفصیلات کے ساتھ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پاس کیا جائے، اس کو سپورٹ کیا جائے، اور ہم کسی بھی قیمت پر حکومت کے ساتھ پلس ہونے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ اور حکومت عجیب ہے، یعنی آپ خود اندازہ لگائیں، اسلامی نظریاتی کونسل 1973 میں بنی اور آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 7 سال کے اندر اس نے ان کی سفارشات پر قانون سازی کر دی۔ آج 2024 ہے، ایک سفارش پر بھی کوئی قانون سازی نہیں ہوئی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلامی قانون سازی کے لیے کوئی جلدی نہیں ہے، لیکن ان کے معروضی مفادات، فوری مفادات، سیاسی مفادات، اس میں اتنی جلدی ہوتی ہے کہ راتوں رات آئین میں ترمیم کی جائے۔ آپ کو یاد ہے 18ویں ترمیم کے لیے ہم 9 مہینے بیٹھے رہے ہیں، 9 مہینے بیٹھ کر ہم نے مشکل سے ایک ترمیم تیار کی ہے۔ آج 24 گھنٹے کے اندر اندر ایک ترمیم کے لیے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو پاس کریں۔ کس طرح یہ ہو سکتا ہے؟ کیسے یہ ممکن ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں واضح کرنی چاہیے کہ یہ جلد بازی ہمیں قبول نہیں ہے، اور ملک آج جن حالات سے گزر رہا ہے، خاص طور پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی جو صورتحال ہے، جہاں حکومت رٹ ختم ہو گئی ہے، اس رٹ کو برقرار رکھنے کے لیے قوانین بھی موجود ہیں، اختیارات بھی موجود ہیں، کوئی نئی قانون سازی یا آئین سازی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہاں پر ملٹری کورٹس کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، یہاں پر عدلیہ میں اصلاحات کے نام پر ہماری تجویز ہے، ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ میں اصلاحات ہوں۔ ابھی آج بھی ایک فیصلہ آیا ہے 63A کے حوالے سے، 63A کے حوالے سے فیصلہ اگر آیا ہے، عدالت کا فیصلہ ہے، ہم قبول کرتے ہیں، لیکن بات بنیادی یہ ہے کہ اس میں کوئی میچ فکسنگ نہیں ہونی چاہیے، اور یہ کوئی سیل پرچیز کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے اس کو۔ یہ چیزیں، یہ پہلو اپنی جگہ پر ہونا چاہیے کہ ہمیں عدالت کا احترام بھی ہے، ان کے فیصلے ہیں، لیکن ہمارے ملک کی جو روایات ہیں ان کو بھی مد نظر رکھ کر ہمیں سوچنا ہوگا کہ اس کا غلط فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے، اور حکومتیں اس کا پہلے بھی غلط فائدہ اٹھاتی رہی ہیں۔ ہمارے دینی مدارس کے حوالے سے آج تک ان کی رجسٹریشن بند حکومت کی طرف سے ہے، پھر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ بغیر رجسٹریشن کے مدارس چل رہے ہیں، ان کے اکاؤنٹس بند ہیں، پھر کہتے ہیں ان کے آمدن کا پتہ نہیں چل رہا ہے کہاں سے اس کو پیسے آ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں حکومت کی طرف سے ہیں، اور اس پر کوئی ایمرجنسی ان کے لیے نہیں ہے۔ ملک میں ایک کیوں اس میں باہر کی دنیا سے، مغرب کی دنیا سے ان کو شاباش ملتی ہے۔ جس مسئلے پر ان کو مغرب کی طرف سے شاباش ملتی ہو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن جہاں سے وہ سمجھتے ہوں کہ ہم نے اپنے مفادات کے لیے ترمیم کرنی ہے تو فوراً ترمیم بھی لے آتے ہیں، اور قانون سازی کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک میں ابھی تک پینڈنگ مسائل ہیں اور اس کے لیے قانون سازیاں روکی گئی ہیں، کیوں روکی گئی ہیں؟ اچھی بڑی معاملات پہ اتفاق رائے ہونے کے باوجود مدارس کے معاملات کو طے نہیں کیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں اہم ہیں، اور پاکستان میں اس کو پرائرٹی ملنی چاہیے۔ اگر اس کو پرائرٹی نہیں ملے گی، ہمارے نزدیک جو حکومت کی طرف سے تجاویز آ رہی ہیں، کوئی ہمارے نزدیک یہ پرائرٹی نہیں ہے، ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دینے کو۔ جس کو ہم اہمیت دینا چاہتے ہیں ان کو لائیں بات، ہماری بھی بات سنی جائے نا۔ اگر ہم اتنے اہم ہیں اور ہمارا ووٹ اتنا ضروری ہے، تو پھر ہمارے مقاصد کے لیے ضروری کیوں نہیں ہے، تمہارے مقاصد کے لیے کیوں ضروری ہے؟ تو یہ ہماری گزارشات ہیں، اور اس حوالے سے میں ایک بار پھر آپ کو مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی عدالت کے یہ میچ فکسنگ نہیں ہونی چاہیے، تو کیا یہ جو فیصلہ آیا ہے پھر اس کو آپ میچ فکسنگ سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں سمجھتا نہیں ہوں، ہونا نہیں چاہیے۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے ہونا نہیں چاہیے، ابھی نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ ہے، لیکن میں کہتا ہوں نہیں ہونا چاہیے۔ مولانا صاحب یہ بھی ایک عدالت کا فیصلہ ہے جیسے آپ نے بات کی، اور دوسرا حکومت نے فوری طور پہ یہ وہاں سے پتہ چلا ہے کہ فوری طور پر مشترکہ اجلاس جو ہے وہ بلایا جانے کی جو ہے وہ امکانات ہیں، اور جلد بلایا جائے گا۔ اگر
इन दिनों में अगले आने वाले 2-3 दिनों में इजलास बुलाया जाता है और आईनी तरमीम का कोई मसवदा पेश किया जाता है, उस सूरत में JUI का और दूसरी अपोजिशन का क्या कट होगा, किस तरह से आप जाएंगे, क्या आप उसका बाइकाट करेंगे या वहाँ पे एहतजाज करेंगे, इस हवाले से कोई देखिए अभी तक ना हमें मुश्तरका इजलास बुलाने की खबर है और ना इस हवाले से हमने भी कोई हिकमत अमली बनाई है। ज़ाहिर है हमारा एक मौक़िफ़ है, जो भी हिकमत अमली होगी हमारे मौक़िफ़ के ताबे होगी। JUI के अलावा हुकूमत के पास जो नंबर गेम है वो पूरी है, क्या आपसे के साथ जो मुलाकातें हैं उससे ये बात जाहिर हुई है कि इस तरह की बात है, और अगर नंबर गेम पूरी है तो फिर आपके साथ मुलाकातों के हमारे साथ क्या है? अभी हमें ऐसी कोई इतला नहीं है जिसका हवाले से आप बात कर रहे हैं। मौलाना साहब, आपने फ़लस्तीन की बात की और उम्मत मुस्लिमा की बात की, तो ये रोल जो है वो सऊदी अरब अदा कर सकता है, लेकिन सऊदी अरब अभी तक कुछ भी नहीं कर रहा। तो आपका क्या स्टांस है, सऊदी अरब को क्या करना चाहिए? अब मैंने मेरे ख्याल में सऊदी अरब को क़ियादत करनी चाहिए उम्मत मुस्लिमा की, उनका एक मकाम है, और पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, मिस्र, तुर्की, इनका एक ग्रुप होना चाहिए जो फ़लस्तीन के मसले पर ये अपना कायदाना किरदार अदा करे और उम्मत मुस्लिमा को एक प्लेटफार्म पर लाए। मौलाना साहब पहले तो आपको पहली बात ये कि आपकी जो मीडिया टीम है वो हमारे साथ कोई तावन नहीं करता। आपके 4-5 जो छोटे बड़े तर्जुमान हैं उसकी जाने से कोई रिस्पांस नहीं आता, बाकी सियासी जमात से तावन करती है, लेकिन आपकी पार्टी के जो मीडिया टीम है वो भी तावन नहीं। आप कैसे ताउन चाहते हैं? उनकी मर्जी के सवाल के जवाब चीज़ें पूछते वो कोई कॉल नहीं उठाते, कोई जवाब नहीं देते, मैसेज से जवाब नहीं देते। ये आपसे सवाल है जी। देखिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप अमीर मुंतखब हुए हैं। मौलाना साहब 90 की दहाई से लेकर अब तक आप ही अमीर चले आ रहे हैं, हालांकि आप जमहूरियत की बात करते हैं, तो क्या जमात उलमा इस्लाम में अब तक आपके मुकाबले में भी और अमीर नहीं आया? ये तो जमात से पूछें, मेरे से मौलाना साहब ये बताइएगा कि आपने तो इस पार्लियामेंट को मुस्तरद कर दिया और आपने कहा कि इस पार्लियामेंट को कोई हक हासिल नहीं है कोई आईनी तरमीम करने का। दूसरी जानिब ये भी खबरें हैं कि आप PTI के साथ मिलकर कोई तरमीम का मसवदा बना रहे हैं, तो ये मतलब है कोई इसमें क्या है कि आप अगर मैंने अपनी सोच आपको बता दी है, ये हमारी सोच है। बाकी हमारे राब्ते हैं, पीपल्स पार्टी से भी हमारा राब्ता है और उनसे भी यही तय हुआ है कि आप भी एक ड्राफ्ट बना दें, हम भी एक ड्राफ्ट बनाते हैं। PTI से भी यही बात हुई है कि आप भी एक ड्राफ्ट बना दें, हम भी एक ड्राफ्ट बनाते हैं, फिर उनको शेयर करते हैं तमाम पार्टियों के दरमियान। राय हो सकता है, हमें कोई इत्तेफाक राय से तो झगड़ा नहीं है। तो फिर इत्तेफाकी राय वाली ये पार्लियामेंट पास कर सकती है अगर इत्तेफाक राय हो जाता है तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन बज़ाहिर इस वक्त तक इत्तेफाक राय नहीं। आप फरमा रहे हैं कि मंडियाँ नहीं लगनी चाहिए, खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो मंडियाँ भी लगेंगी, खरीदो फरोख्त भी होगी। ये क्या बेहतर नहीं होता कि जमीयत उलमा इस्लाम बाकायदा इसमें पार्टी बनती और फुल कोर्ट का मुतालबा करती, तो ये मामला किसी न किसी हद तक रुक सकता था? ये तो आप पहले मशवरा देते ना। आपने पहले पूछा नहीं। मौलाना साहब आज के फैसले से फ्लोर क्रॉसिंग तकरीबन अलाउ हो चुकी है। बतौर सियासतदान पार्लियामेंटेरियन आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि अब लोगों की वफादारी? अल्हम्दुलिल्लाह 88 से मैं असम्बली में हूँ, नहीं किसी सूबाई असम्बली में, नहीं विफाक में कोई एक मेंबर भी हमारा कोई फ्लोर क्रॉस नहीं कर सका है। हम अपनी पार्टी के ज़िम्मेदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें ये इज़्ज़त दी है। हमारे अरकान पार्टी के साथ बड़े मजबूती के साथ खड़े होते हैं, उनकी एक कमिटमेंट होती है और आज भी हमें ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम के बारे में भी फ़िक्र रहें, बाकी जो है तो उनका ख्याल रखा जाए। मौलाना साहब सवाल इधर से ले लें सर, आप ये पहली दफ़ा आपने जो इनकार किया उसके बाद दूसरी कोशिश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में अब ये तरमीम किसी न बाय हुक एंड बाय क्रुक अगर करवा ली जाती है, तो आपने पेशावर में कहा कि ये तरमीम का जो मसवदा है ये आईनी तरमीम का नहीं मार्शल लॉ का मसवदा है, तो अगर ये बाय हुक एंड बाय क्रुक करवा ली जाती है जोर ज़बरदस्ती, तो फिर आपकी क्या है? ज़ाहिर है जी कि हम तो इससे इख्तलाफ राय करेंगे और इख्तलाफ राय की नौइयत क्या होगी वो फिर बाकायदा। अभी तो हमारी नए इलेक्शन हुए हैं, ना हमारी आमला बनी है अभी तक, ना हमारी शूरा बनी है,
जब वो बनेंगे तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें उनमें मेरे पास आएंगी। आप क्या कह रहे थे? जी ऐसी मुलाकातें भी है जो कैमरों के सामने नहीं होती, मतलब सियासी जमातों के अलावा भी कोई आपके रास्ते पर नॉन स्टेट एक्टर्स कोई रास्ता नहीं है। सर फलाई मखलूक तो यहाँ पर नहीं आती आपसे बात? आप 24 घंटे बाहर होते हैं, कोई कहाँ नहीं से है। आते हैं? आपके ऊपर से सामने आते से हैं? आपके सामने से गुजरा है। 24 घंटे आप बाहर बैठे होते हैं, ऊपर से साहब आप आज भी इस बात पे कायम है कि आपके बगैर ये तरमीम नहीं हो सकती। सुबह के अजान तक तो आप खड़े होते हैं। मौलाना आज भी आप समझते हैं कि आपकी जमात के बगैर ये तरमीम नहीं हो सकती? ये मुझे अभी तक तो नहीं है, और इससे आगे अगर कोई और सूरत हाल बन जाती है तो उसका मैं कोई हद पे बात नहीं कह सकता, लेकिन हम अपनी राय के ताबे होंगे, हम अपने मौक़िफ़ के ताबे होंगे और मजबूती के साथ अपने मौक़िफ़ पे बात करेंगे। पार्लियामेंट के अंदर ही इसको रोकेंगे या कि रोड्स पे भी आने का कोई प्रोग्राम है आपका? ये सारी चीज़ें जब हमारे शूरा बैठेगी तो अपनी हिकमत अमली बनाएगी। आ रही है कि आपने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो है कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था आपने, जो तहरीक इंसाफ और आपकी जमात का जारी जो आपसे राब्ता हुआ आपने वज़ीर आला KPK के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इतना बड़े मामूली लफ्ज़ का है। वहाँ सिरे से हुकूमत नहीं है। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या कोई हॉर्स ट्रेडिंग की राह हमवार हो जाएगी? मैंने बात कर ली उसके ऊपर, काफ़ी है ना। अच्छा मौलाना साहब ये बताइएगा कि हुकूमत कहती थी कि पहले आपको मनाने की कोशिश की, रहनुमा आते रहे, बाद में उनके ही मौक़िफ़ ये था कि अब हमें मौलाना साहब की शायद ज़रूरत ना पड़े, तो क्या हुकूमत कामयाब होगी आपके बगैर? इस पर तो 2-3 सवाल आ गए हैं, मैंने बात कर ली है, बार बार दोहराने की क्या ज़रूरत है। अच्छा मौलाना साहब, कल इरफान सिद्दीकी साहब ने आपसे मुलाकात की और उन्होंने अपनी गुफ्तगू में बाहर बताया कि PTI वाले, क्योंकि वो भी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर हैं इस आईनी तरमीम के हवाले से मशावरत में, तो वो उनको डाकू और चोर कहते हैं, तो वो उनसे डायरेक्टली बात नहीं करते, तो मौलाना साहब अगर चाहें उनसे बात कर सकते हैं, सालिसी का किरदार अदा कर सकते हैं, तो ऐसी कोई पेशकश आपको हुई और उसमें आप ये किरदार अदा कर रहे हैं? हमारी तो अव्वल दिन से ये कोशिश है कि इख्तलाफ राय हो, लेकिन जो तासुबात और नफ़रतें हैं और दुश्मनी तक बात चली जाती है, मुल्क की सियासत में ये अंसर नहीं होना चाहिए, और उसके लिए हमारी कोशिश भी है। अब सबसे ज़्यादा इख्तलाफ तो PTI और हमारा था, लेकिन अगर हम अपोजिशन में आकर बैठे हैं तो आप देख रहे हैं कि रोज़ बरोज़ हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हिज़्ब इख्तलाफ जो है वो आपस में किसी बाहमी मुज़ाहमत का शिकार ना हो, और उसमें हम कामयाब आगे बढ़ रहे हैं। और मैं ये भी चाहूँगा कि इख्तलाफ होते हैं, अपोजिशन अपना किरदार अदा करती है, हुकूमत अपना किरदार अदा करती है। तामीरी तनकीद जो है वो तो हुस्न है हमारी जमहूरियत का, हमारे पार्लियामेंट का, और ये रहेगा। और जिस तरह जितना हुजम अमल का होगा उतना ही हुजम रद्द अमल का होना चाहिए। मौलाना साहब, आपकी वजह से पिछली मरतबा उनका सब निज़ाम जो है वो धड़ाम से गिर गया, एतवार वाला दिन भी जो था कि आसमान गिर पड़ेगा, वो वाकई गिर पड़ा उन पे। क्या आपको लगता है कि अब फिर जो है ये कोशिश, आपका सियासी तजर्बा क्या कहता है कि फिर उसी तरह ये होने जा रहा है या नहीं? हज़रत अभी तक तो हमें कोई ऐसी इत्मीनान बख्श चीज़ नहीं मिली है, क्योंकि रोज़ कोई ना कोई मुसवदे में नया मुसवदा आता है, रोज़ कोई नया मुसवदा आता है, फिर एक नया मुसवदा आता है। तो इस तरीके से तो अभी तक वहाँ पर भी कोई एक यकजहती मौजूद नहीं है, न यकसुई मौजूद है कि हमें कोई एक बात कही जाए। जिस वक्त कोई एक बात पर पहुँचेंगे तो फिर हम बात करेंगे। अच्छा मौलाना साहब, कल PTI ने डी चौक पे एहतजाज की कॉल दी हुई है, तो क्या उसकी हमायत आपकी दरख्वास्त के बावजूद अगर मौखर नहीं करते तो हमायत करेंगे? मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि PTI का और हमारा किसी तरह भी कोई मुश्तरका इज्तिमा का कोई फ़ैसला आपस में नहीं हुआ जी। वो अपने जलसे करेंगे, हम अपने जलसे करेंगे, लेकिन हमने एक अपील की है कि जब तक बाहर के मेहमान यहाँ मौजूद हों, हमें कोई ऐसा इक़दाम नहीं करना चाहिए जिससे कि मनफी पैगाम जाए उधर से। जमात इस्लामी की जानिब से 7 तारीख को मिलियन मार्च का ऐलान किया गया इस्लामाबाद में गजा और फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के हवाले से। अगर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम और रहमान आपसे इस हवाले से रब्ता करते हैं, जैसे उन्होंने 2 दिन पहले PTI से भी मुलाकात की और आज बिलावल हाउस भी गए थे फील्ड में गजा मार्च के हवाले से, मिलियन मार्च के हवाले से, अगर जमात इस्लामी आपसे रब्ता कर दिया और आप मना कर रहे हैं कि इस पर जो सिंगाई तावन तंजीम है उसके मंदूबीन भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं, अभी मेरे साथ कोई रब्ता करते तो आपका क्या लाया? अभी मेरे साथ कोई रब्ता नहीं हुआ है।
اور جب تک کوئی رابطہ نہیں ہوتا تو میں اگر پہ تو جواب نہیں دے سکتا کوئی. بہت شکریہ جی. دو سوال 3 سوال کر رہا ایک سوال مولانا فضل الرحمان نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.